Moments ago, you were watching the interview of Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. He was talking about various reforms that have been introduced in the agriculture sector to empower farmers. In the special presentation today, we'll take forward that discussion. We'll talk about different aspects, the challenge of the pandemic to doubling the farmers' income. 360-degree reforms introduced for the farmland and farmers will be the focus of the program today. बिल्कुल शुभेंदु, बहुत शुक्रिया। नमस्कार दर्शकों। और मुश्किलों को हौसले से वो अपने आसान बनाता है, हारता नहीं, अंधेरे से जो वो पहचान बनाता है, खटता है दिन रात खेतों में, लथपथ हमारे खुराक का अन्न जो किसान बनाता है। आज बात कर रहे हैं श्रम देवताओं की, किसानों की, ऐसे किसानों की जो इन्होंने इस आपदा के मौके पर भी अवसर बनाए हैं, उसका लाभ उठाया है और हमारी सरकार उसके साथ खड़ी हुई है। अभी जैसा शुभेंदु ने कहा कि जो हमारे मंत्री को हमने सुना कि किस तरह से सरकार एक एक स्टेप पर किसानों के साथ खड़ी हुई है, अपने श्रम देवताओं के साथ खड़ी हुई है, उनकी श्रम की, उनकी शक्ति की, उनकी मेधा का प्रयोग करना चाह रही है और उपयोग करना चाह रही है और साथ साथ उनको भी लाभान्वित करनी चाह रही है। आज हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर अनिल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ ही साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मधुरेंद्र सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत स्वागत है सर आपका। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Absolutely. Professor Kumar, if we can begin with you, sir. This whole vision of Atmanirbhar Bharat, really, its significance came to the forefront during the time of the pandemic. Unprecedented medical, social and economic challenge facing the nation. The minister, we were listening to the minister's interview a short while ago, and he said that rural sector, rural economy perhaps is the only sector perhaps which was not as adversely impacted by the pandemic, and we still see signs of growth. If you could give us an assessment of these few months of the pandemic, the challenge that the nation has faced, how has the agriculture sector, how have the farmers faced this challenge with resilience? This pandemic period has been very challenging for us and for all the countries in the world. But fortunately, the farm sector in India, it's still growing at a very faster pace, and which is the fastest in the last 1 decade. Thanks to the timely good southwest monsoon, the area of acreage, the crops which have been sown, has shown a tremendous increase. In fact, if you go into the figures, until July 2020, 58 millions of hectares were sown. If you compare this with the same month in the last year, it was 40.3 million hectares, a substantial jump. The minimum support price has also been increased by the government, has been announced for financial year 2021. The MSP for food grains, pulses, oilseeds, Right, all have been substantially increased. Area under rice has increased by 35% in this season by the end of June 2020. The pulses, the area has tripled. In case of the oats cereals, doubled. Oil seeds has gone up by 5 times. And the GDP, if you go by the sector wise, agriculture was the only sector which grew by 3.1%. That means in the time to come, the growth in the Indian economy is going to be led by the agriculture sector, given the fact that the economic package of rupees 20 lakh crore, which was unveiled by our Prime Minister in May 2020, has substantial provisions, and it talks about the substantial reforms in the agriculture sector which have never happened before, and these are going to be the game changer so far agriculture sector is concerned.
बिल्कुल। डॉक्टर अनिल कुमार, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात कही, लेकिन साथ साथ किसानों के लिए कुछ खास करने की भी कोशिश की कि ताकि ये जो हमारे जो किसान हैं उनको अपना जो क्रॉप प्रोड्यूस बेचने की बात आती थी, जिस तरह से बताया जाता था कि फसल बेचने के लिए मंडी से एक तरह से मुक्ति दिलाई। अगर सीधा सीधा समझा जाए कि कितना असर इसका पड़ेगा और कब तक इसका जो असर है वो दिखने लगेगा? देखिए, अभी पीछे जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में सरकार ने पहले अनाउंस किया और उसके बाद सरकार ने 3 ऑर्डिनेंसेस को पारित किया जी। उन 3 ऑर्डिनेंसेस को पास करने से क्या हुआ? सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, उसमें चेंज किया गया। उसमें से काफी जो हमारी कृषि उत्पाद की प्रोडक्ट्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियंस, आलू, इन सबको बाहर रखा गया। इसका मतलब अगर किसान की किसी एक सीजन में ज्यादा फसल होती है, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किसी भी ट्रेडर को कितना बेच सके। पहले एक कोटा फिक्स होता था, उससे अधिक होने पर न तो कोई उसको खरीद सकता था, न अपने पास स्टॉक रख सकता था जी। उसकी वजह से किसानों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। हमने पीछे देखा कि कैसे जब प्याज की सरप्लस फसल हो जाती थी तो कितनी दिक्कतें किसानों को होती। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ा रिफॉर्म मैं समझता हूं, 1960 के आसपास एक एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज बनाई गई हर राज्य में। उसके तहत मंडियां निर्धारित की गई और उसमें जो परचेज कर सकते हैं किसानों की प्रोडक्ट, उनको ये कहा गया कि वो आसपास की मंडी में ही जो निर्धारित प्राइस होगा ऑक्शन में, सिर्फ उस पर ही बेचना है, उससे बाहर वो नहीं बेच सकते जी। आज के समय में ये अजीब लगता है कि क्यों उनको हम फ्रीडम नहीं देते। अगर किसानों को अच्छा मूल्य इससे बाहर मिल सकता है, दूसरे राज्यों में मिल सकता है, तो क्यों ना वो फायदा हम दें। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम ई-नैम प्लेटफॉर्म हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसमें एग्रीकल्चर को आप इलेक्ट्रॉनिकली भी बेच सकते हैं अपने प्रोड्यूस को। तो एपीएमसी व्यवस्था को खत्म किया गया। इसका मतलब आमूल चूक परिवर्तन कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग कैसे करें, उसमें किया गया। और ये समय आने के बाद इसमें काफी कुछ जो किसानों की आय है इसमें सुधार होने वाला है, क्योंकि उनको एक तरह से फ्री मार्केट, और उनको उस फ्री मार्केट का फायदा होगा। वो जो भी मार्केट फोर्सेस है उसके हिसाब से अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, अपने स्टेट के बाहर भी बेच सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। उसके लिए ये राज्य सरकारों का भी कर्तव्य हो जाता है कि वो केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। उसके लिए साथ साथ सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का है और जिसका अनाउंसमेंट 9 अगस्त 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इस एग्रीकल्चर फंड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या आ गया? उसमें जो क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, प्रोसेसिंग है, ब्रांडिंग है, इन सब का, और लॉजिस्टिक है, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़, जैसे माननीय मंत्री जी भी अभी बोल रहे थे, 1 लाख करोड़ पैकेज जिसके अंदर डिस्काउंटेड रेट पर interest rate. Absolutely, sir. We'll talk about the specifics of the reforms further. If I can come to you, Madhurendra Sinha, senior economic journalist, also is joining us. To understand once again the impact of the pandemic on the rural economy, what is happening is not just farmer going ahead with their responsibility, producing a good crop output, but we also saw a lot of migrant workers returning to their roots.
arrangements were made for rozgar, for employment for them at their homeland. But what kind of a pressure we want to understand? Now, there's so much upheaval in the rural economy in the past few months. What kind of a pressure, Mr. Sinha, was put on the rural economy, and how was it dealt with? If you can help us understand that, especially in the past few months of the pandemic and lockdown. Yeah, during this pandemic, rural economy, we found a lot of pressure, but then things came out very well because of the support of the union government and of course in some places state governments also, because you see they had been putting money, they had been starting some new schemes also. The migrant labor which went to the villages were also given some kind of rozgar, then some financial assistance to buy cattle. In some cases they were given houses also. It was done, but the most important thing was that the crop which was ready for sale was procured by central agencies like FCI. They have done a tremendous job by procuring all kind of Kharif Rabi crop, and now they are ready going to buy good quantity of crop in future also. This has given a strength to the village economy because the farmers got money, immediately got the money. It was a very good decision to buy the crop. So it was a successful move. And so do you see the benefits of it reaching especially the small and marginal farmers also? We know it's a diverse agriculture sector, most of them being small and marginal farmers. Do you see benefits of these reforms percolating to the small farmers as well? Yes, because you know PM has announced Kisan Samman Nidhi Yojana, which used to give a lot of money to farmers, 78,000 or 79,000. I can't exactly. 6,000 a year, 2,000 rupees. 6,000 per year, but 70,000 crore, more than 70,000 crore to the government, from the government. So this money is quite good. 2,000 rupees for a small farmer in a village is good amount to start to his agriculture work, like buying seeds, buying fertilizer, etc. So he can sustain. Now the buying of his crop is equally important, which was sold by agencies like FCI and others. They have also gone for it, and they got their crops sold on time and got the money also. मधुरेंद्र जी, आपसे बल्कि अगर सीधे समझने की कोशिश करें कि खेती किसानी को फायदे का सौदा कैसे बनाया जाएगा, किसान कैसे उद्यमी बन सकेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, क्या रोड मैप है सरकार के पास, किस तरह से सोच रही है सरकार? सरकार ने देखिए बहुत सारी इसमें योजनाएं शुरू की हैं, जैसा अभी डॉक्टर अनिल कुमार जी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया जा रहा है 1 लाख करोड़ से। असल में होता यह है कि जो हमारे किसान की उपज होती है उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता, उचित मूल्य नहीं मिल पाता, और मिलता भी है तो इतनी देर से मिलता है कि उसका फायदा खत्म हो चुका होता है। फिर हम देखेंगे सब्जियों के केस में खास करके हम देखते हैं कि हिंदुस्तान सब्जी उत्पादन करने वाला दुनिया के चुनिंदा देशों में आता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके प्रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। खेतों में प्याज सड़ जाता है, टमाटर सड़ जाता है, आलू फेंक दिए जाते, तो इसको आपको टैप करना होगा कि उनको सही, उस पर भी उन्हें सही मूल्य मिले। ऐसी स्थिति क्यों आए कि वो सब्जियां, आलू प्याज जमीन से उखाड़ करके सड़क पर बंद करेंगे, ये सुराख हम बंद करेंगे तो किसान की आय सुनिश्चित हो जाएगी और उससे उसको इनकम होना शुरू होगा। जी, जब तक उसको आप सही मूल्य नहीं देंगे तब तक वो उत्साहित नहीं होगा, और जब तक उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक उसकी बिक्री भी नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, उसकी फसल सही समय पर सही दाम पर ले ली जाए। बिल्कुल। यहाँ पर जी बोलिए। इसके लिए उसे ऋण की भी व्यवस्था, आसान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था भी की गई है। सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं, कई एजेंसियों को भी इसके लिए नियुक्त किया है कि वो किसानों को सही दर पर ऋण दे। ज्यादा महंगे ऋण लेने से क्या हो रहा है कि किसान ऋण के जाल में फंस जाते थे और कई बार अपनी आत्महत्या कर लेते थे, जो बहुत दुखद है। तो वो उसको रोकने के लिए ये भी अच्छा है कि ऋण सस्ते दरों में दिया जाए। ऐसे किसान को इंश्योरेंस का बीमा, फसल बीमा का पैसा भी मिले अगर उसका, जैसे अभी बिहार में बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आई है, उनकी फसल डूब गई है, तो उन लोगों को फसल बीमा स्कीम के जरिए उनको पैसा दिलाया जाए ताकि अगले साल भी वो हिम्मत जुटा सके खेती करने की, अगले क्रॉप के लिए। जी,
बिल्कुल ठीक बात आपने कही। बहुत सारे इसमें बिंदु हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर एक एक पर सरकार नज़र रख रही है, चाहे वो ऋण दिलाने की बात हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे छोटे से छोटी एक बात हो उसके लिए। आपने इसमें एक जिक्र किया मधुरेंद्र जी, आधारभूत ढांचे पर विशेष काम करने की। अनिल जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर अनिल, कि जो आधारभूत ढांचा है अभी तक, इसके पहले तक, कुछ समय पहले तक थोड़ा उपेक्षित रहा है, ख़ासतौर पर अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए। ये सरकार जो है वो थोड़ी एग्रेसिव दिख रही है, इस पर कितना फर्क पड़ेगा और क्या कुछ कितना इसमें जो निजी निवेश भी लाने की बात कही जा रही है, क्या कुछ चेंजेस आएंगे इससे? इसमें ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए है। और ये मैं कहूंगा कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है, फसल पूरी हो गई, अब उसको बेचने की बात है। अगर आप किसानों को मार्केटिंग फ्री कर रहे हैं, अपनी चॉइस से वो जहां चाहे बेच सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि उनको इस तरह की सुविधाएं, जो कहते हैं मूलभूत ढांचा तैयार हो। जी। तो इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोविजन है कि 3% कम रेट से, किफायत रेट से, और इसमें क्रेडिट गारंटी है 2 करोड़ रुपए तक, उसका फायदा कौन कौन उठा सकते हैं? प्रोड्यूसर कंपनीज, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं। एक कम्युनिटी एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, आज हमारे देश में 80% जो किसान हैं वो सीमांत किसान, उनके पास कुछ फैसिलिटीज नहीं है। अगर ये ग्रुप बनाकर कुछ एंटरप्रेन्योर्स, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कुछ स्टार्टअप्स और लोकल बॉडी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दें और 4-5 गांव के क्लस्टर्स में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो प्रॉब्लम्स आती थी कि उनको ग्रेडिंग करना है, उनको नुकसान से बचाना है। आपने पीछे कई बार देखा होगा कि जैसी फसल कटी, पता लगा कि बहुत तेज बारिश, तूफान आ गया और उसमें काफी नुकसान सरकार का, या जिसने एग्रीगेटर ने जिसने खरीदा उसका नुकसान हो गया, या फूड कॉरपोरेशन का नुकसान हो गया। तो अगर उसको स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तैयार हो जाएंगी तो किसानों का नुकसान भी कम होगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसका रिजल्ट ऐसा नहीं कि अभी 2 महीने में 4 महीने में आएगा। जैसे मैंने पहले कहा, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में टाइम लगता है, उसके लिए फंड मुहैया करा दिया गया और ये अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का लार्जेस्ट एलोकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, 1 लाख करोड़ का। अभी तक किसी सरकार ने इतने बड़े अमाउंट का एलोकेशन कभी भी नहीं किया। और जिस तत्परता से अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद इस फंड को रिलीज कर दिया गया, ये काबिले तारीफ है। आने वाले समय में मैं देखता हूं जैसे पेंडेमिक पीरियड की कुछ कम होता है तो कुछ लोग आगे आएंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप फर्म्स हैं, कोऑपरेटिव फर्म्स हैं, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। Right. Madhurendra Sinha ji, if I can come to you, each time Prime Minister talks about farmers' empowerment, doubling farmers' income, one word, one aspect that comes to the fore is diversification. I was reading the 16-point agenda that was also mentioned in the budget this year's budget on agriculture, 16-point agenda. Very prominently what features is focus on fish production, beekeeping. We were doing a program on solar energy last week, and again in that how Annadata could become Urjadata as well, farmers could diversify. How significant is that given the needs of the time that we're living in, the farmers are living in? How crucial is that aspect of diversification, and what progress do you see has been made already in this aspect? Well, first I will say about the progress. It is not easy to start such schemes immediately, but a start has been done. Announcement is there, money is going to be disbursed very soon. But the 2 points which I would like to mention is that one is fishing and another is solar energy.
Yes. If you see, India is one of the largest fish grower producing country. Right. But I have gone to the places where fishermen come from the sea and store their fishes. They are in a very poor state. They do not have proper infrastructure like what we have in foreign countries, in European countries, even Thailand, etc. So we must create infrastructure near the sea beaches where the fishermen come with their products, their produce. So this will help them preserving their products and selling them at a good price. This is a very good step by the government of India, that they are helping creating a fisherman's infrastructure. The second one is Kisan will become another annadata by selling solar energy. You know, India is such a country where we see sun for the 11 months, for the 10-11 months there is always sun. India is also the leading member of the International Solar Alliance. Yes, exactly. Right. Solar energy, we are very far ahead. So now we can move further ahead. Farmers should be encouraged, they should be financed to produce more and more solar energy. Solar panels should be kept there, they should be given there, they should be properly implemented. The program should be implemented so that they can produce solar energy in a large scale, and this will give them another chance of earning money, the second type of money which they can earn. This is a wonderful idea. बिल्कुल डॉक्टर अनिल कुमार, जो अभी शुभेंदु ने जैसा कहा कि डाइवर्सिफिकेशन फिशरीज़ की बात कही, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अब अगर इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ऐड किया जाए, जो डेयरीज़ की बात हो रही है, जो पशुपालन की बात हो रही है, ख़ासतौर पर जो वैक्सीनेशन किया गया पशुओं का बड़ी संख्या में और बहुत तेज़ी से हो रहा है, कितना फ़र्क डालेगा किसानों के जीवन में और कितना फ़र्क डालेगा टोटल जो रूरल अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने में, और ख़ासतौर पर ऐसे समय में जब हम एक पैंडमिक से जूझ रहे हैं या उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जाए तो बेहतर होगा। आज हमारे देश में 50% से ज़्यादा लोग रूरल इकोनॉमी के ऊपर हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें फार्म इनकम को बढ़ाएं। उसके बिना हम जो ये 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, सोचना भी आसान है। अब फार्म इनकम बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, उसको विकसित करने के लिए जो ये इकोनॉमिक पैकेज 20 लाख करोड़ का आया, उसमें तकरीबन जितने भी आयाम हैं एलाइड एक्टिविटीज के, अगर मैं इनमें से कुछ नाम लूं, फिशरीज के लिए 20,000 रुपए करोड़ का प्रावधान है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। इसके तहत एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसमें वेटरनरी हॉस्पिटल्स भी आ गए, दूसरे सेंटर्स भी आ गए, और टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी आ गया। उसमें 15,000 रुपए करोड़ का प्रावधान। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, इसमें काफी अच्छी संभावनाएं हैं जी, क्योंकि एक तरह से रूरल इकोनॉमी से ही प्रभावित होती हैं कि मधुमक्खी पालन से किसान अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं और इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स भी बहुत ज्यादा है। उसी तरह से फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो छोटी जो फूड आइटम्स हैं, उनको उसके लिए 10,000 रुपए करोड़ का प्रावधान जी। कुल मिला के एग्रीकल्चर इनकम और इनकम फ्रॉम एलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द रूरल सेक्टर, सब सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया है। सिर्फ एक केंद्र बिंदु है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है आने वाले साल। बिल्कुल, फार्मर्स के इनकम को डबल करना है और जो हमारी सरकार है वो निश्चित तौर पर इसके लिए लगी हुई है। हमारे जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो भी लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में समय इतनी ही इजाज़त दे रहा है। हम अपने दोनों मेहमानों का ख़ास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर अनिल कुमार, आपका बहुत शुक्रिया, और मधुरेंद्र सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और इस विषय पर आपने चर्चा की।
And with that, we also conclude this special edition of Atmanirbhar Bharat. We were talking about the potential for reforms and the impact of it in the agriculture sector for the empowerment of our farmers. Our journey of Atmanirbhar Bharat will continue again tomorrow, but for now, we'll take your leave. नमस्कार.